everyone. So we have completed exercise 1.1 of chapter 1, number system of class 9th. Now we'll be talking about irrational numbers. As I have explained before, that real numbers are of two types. Real numbers are of two types: rational and irrational number. Fine. Rational and irrational number. Rational numbers which can be written in the form of p by q. Fine. Which can be written in the form of p by q where q is not equal to 0. And p and q are integers. And these cannot be written in the form of p by q. Now moving on further, we know that some basic things that we should know about irrational numbers. Fine. अगर कभी भी रूट के अंदर there is some prime number, right? So this whole number is always an irrational number. Fine. If the number in the root is a prime number. For example, root 2, root 3, root 7. So these are all prime numbers. Fine. First thing. In the second thing, you must note that pi is an irrational number. Fine. Pi is an irrational number. The third thing you must know that considering the decimal expansion of a number. Fine. Decimal expansion कैसे आता है? When we divide two numbers. Fine. तो decimal expansion जो होता है, that must be non-repeating and non-terminating. Means वो कभी खत्म भी नहीं होना चाहिए and वो कभी repeat भी नहीं होना चाहिए. For example, 2, 4, 7, 6 ना ही खत्म हो रहा है और ना ही repeat हो रहा है. 7, 8, 9, 0, 0. ठीक है, चलता ही जा रहा है, कभी भी खत्म नहीं होगा. है, मतलब मर भी जाओगे तो भी खत्म नहीं होगा. Fine. तो these are the qualities of an irrational number. Fine. So ये सब अगर तुम्हें पता होगा तो you'll be able to recognize कि कौन सा number rational है और कौन सा number irrational है. Fine. Now moving on further, I'll be telling you how to locate root 2 on number line. See, this is a number line. You almost know. Fine. This is 0. Here we have positive numbers 0, 1, 2, 3. ठीक है? And here we have negative numbers. So हमें ये तो पता है कि इंटीजर्स इस पे कैसे प्लॉट करते हैं. फ्रैक्शंस भी हम अप्रोक्सीमेटली प्लॉट ही कर लेंगे. बट अगर व्हाट इफ वी हैव टू प्लॉट एन इररेशनल नंबर लाइक रूट 2. हमें पता है अगर रूट के अंदर प्राइम आ जाता है, दिस इज एन इररेशनल नंबर. नाउ हाउ डू वी प्लॉट दिस ऑन अ नंबर लाइन? सो बेसिकली देखिए, इसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, हम कहाँ से प्लॉट करेंगे? फाइन, अप्रोक्सीमेटली प्लॉट होता है, बट एग्जैक्टली कैसे प्लॉट करोगे? सो फॉर दिस we must know an important theorem of mathematics, that is Pythagoras theorem. Fine. According to Pythagoras, if this is a right angle triangle and this is a hypotenuse, this is the base and this is perpendicular, then hypotenuse का square is equal to perpendicular का square plus base का square. Fine. So if we have base perpendicular is 1 and base is 1, then hypotenuse would be 1 का square plus 1 का square is equal to 1 plus 1, 2. So hypotenuse का square is 2 and hypotenuse would be root. So somehow if we get a triangle, if we get a triangle whose sides are 1, whose perpendicular and base are 1 and 1, then we get this root 2. See, so how can we plot this? So I'll tell you how to plot this. First of all, draw a bigger number line. Here. This is 0, 1, minus 1. See, I'll do this only because other things are not needed. Fine. So we just draw a base of 1 unit. Fine. Now with the help of protector, okay, draw a 90-degree angle. Then our goal is to make a right angle with base and perpendicular 1 so that we get hypotenuse root 2. Fine. So this is a perpendicular
नाउ टेक दिस विद द हेल्प ऑफ हेयर कंपास, ठीक है। यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे वो पेन रखनी है उसकी कंपास की, और यहाँ पे पेंसिल। सी दिस वी हैव गॉट व्हाट 1 unit, so mark it the help of pencil over here, so this would be 1 unit. Fine. So if we join this we get root 2. Fine. So this is the measurement root 2. Fine. Now we have got root 2. Root 2 मिल गया. Now we have to just plot it. So compass यहाँ पे रखा, यहाँ पे क्या होगा, उसकी पेन compass की और यहाँ पे पेंसिल, उसको बस ऐसे करके घुमा देना है. So this point over here would be what, root 2. Fine. So this is root 2. Fine. तो हमें बेसिकली मेन गोल यहाँ पे क्या है कि हमें ये पता करना है कि जो बेस ऑफ परपेंडिकुलर क्या ले, ताकि जो उसका हाइपोटेन्यूज है वो जो हमें चाहिए वो आ जाए. मेजरमेंट मिल गई तो फिर प्लॉट करना तो बहुत ही आसान है, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी प्लॉट रूट 2 ऑन नंबर लाइन. नाउ विल सी हाउ टू प्लॉट रूट 3 ऑन नंबर लाइन. फाइन. सो वी हैव टू प्लॉट व्हाट, रूट 3 ऑन नंबर लाइन. फाइन. रूट 3 ऑन नंबर लाइन. सो अब रूट 3 को प्लॉट करना है. फाइन. पर हमें फिर हमें तो देखना पड़ेगा ना कि ऐसा कौन सा ट्रायंगल लें जिसका हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, रूट 3 हो, और उसका तो हमें बेसिकली फाइंड करना है कि उसका बेस ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, राइट. तो हम क्या करेंगे, हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज व्हाट, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट. और अगर हाइपोटेन्यूज का मैं उधर जाके रूट हो जाएगा तो बेसिकली ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, राइट. तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है हमारा, रूट 3 है. तो बेसिकली इस फॉर्म में अगर मैं लिख दूं इसको तो वी विल गेट टू नो कि उसका बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, राइट. सो अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, बेसिकली मतलब मैं किसी दो नंबर्स के स्क्वायर के हिसाब से अगर मैं लिख दूं तो विल गेट टू नो कि परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है, राइट. तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे, तो द ट्रिक टू फाइंड दिस इज क्या करना है, रूट 3 के आसपास जो तुम्हारा बीच में रूट के अंदर चीज है उसके आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है. तो 1 होता है, उससे कम होना चाहिए. 1 होता है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो 4 तो नहीं हम ले सकते, लाइक इस 3 से बड़ा है. तो वी विल राइट इट एज 1 प्लस. अब 1 प्लस में क्या लिखूं 3 को, 1 प्लस 2. फाइन. तो अब हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये वाली फॉर्म चाहिए, राइट. तो हम क्या करेंगे, इसको हमने कैसे लिख दिया, ये क्या होगा, 1 को तो मैं 1 का स्क्वायर लिख दूंगी, 2 को क्या लिख दूंगी, मुझे पता है अगर दो चीज को रूट को मल्टीप्लाई करो तो वो चीज आती है ना, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है मेरा, 2 होता है. फाइन. तो यहाँ पे भी रूट 2 का स्क्वायर होगा बेसिकली 2, तो मैं लिख दूंगी इसको रूट 2 का होल स्क्वायर. फाइन. तो यहाँ से मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि मैं अगर बेस या परपेंडिकुलर में से अगर एक को भी 1 ले लूं और दूसरी जो साइड है वो रूट 2 ले लूं तो मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा हमारा. सो और हमें ये तो पता है कि रूट 2 को कैसे प्लॉट करना है, अभी हमने पहले देखा, और 1 तो हमारा आराम से मिला ही होता है नंबर लाइन पे, तो 1 वी ऑलरेडी नो, ठीक है. तो कैसे प्लॉट करेंगे, तो फर्स्ट वी हैव टू, ठीक है. तो बेसिकली रूट 3 के लिए हमें क्या चाहिए, एक 1 चाहिए, एक रूट 2 चाहिए और एक यहाँ पे तब रूट 3 आएगा, ठीक है. अब हमें हमें इसकी चिंता नहीं करनी कि बेस को क्या ले, परपेंडिकुलर की कुछ भी हो, इसको अल्टरनेट कर दो तो एडिशन तो क्या होता है हमारा कम्यूटेटिव होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है. बट ये ध्यान में रखना कि मुझे अगर 1 को बेसिकली रूट 3 चाहिए तो 2 होना चाहिए हमारे पास, तो पहले रूट 2 को प्लॉट करेंगे नंबर पे, और वो तो तुम्हें पता है कैसे करना है, अभी थोड़ी देर पहले किया हमने. तो अगर दिस इज द नंबर लाइन, फाइन, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज -1. फाइन. दिस इज व्हाट वी नीड. वी डोंट, चलो 2 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे -2 ले लेते हैं, ठीक है. पहले तो रूट 2 प्लॉट करना है, मुझे पता है, मैंने यहाँ पे 1 यूनिट बनाया, 90 डिग्री प्रोटेक्टर से बना लेना, कंपल्सरी बनाना आता ही है, ठीक है. तो ये बना लिया, उसके बाद में इसको कंपास से मार्क कर लेना और इसको यहाँ पे ऐसे पेंसिल से आर्क लगाना. ये 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, रूट 2. फाइन. रूट 2 मिल गया. अब क्या करना है,
अब हमारे पास √2 की मेजरमेंट है, तो अब हमें √2 नहीं चाहिए, हमें √2 का हट गया, अभी हमें √3 चाहिए। तो व्हाट वी विल डू, मुझे इसको ट्रायंगल बनाना है किसी भी हालत में। तो अब एक साइड √2 तो है, तो मुझे बस 1 वाली साइड चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगी और कंपास से या फिर प्रोटेक्टर से यहाँ पे मैं 90 डिग्री बना दूंगी, ठीक है। प्रोटेक्टर से पता है कैसे बनाते हैं, वो तो बहुत स्मॉल क्लासेस में किया है तुमने, ठीक है। नाउ यू आर 9 सो यू शुड नो इट, ठीक है। एंड तो यहाँ पे हमने प्रोटेक्टर से 90 डिग्री बना दिया या फिर कंपास से व्हाटएवर, ठीक है। फिर क्या करना है, हमें 1 यूनिट चाहिए। हमने यहाँ से 1 यूनिट मेजरमेंट ले लिया और यहाँ पे हमने आग लगा दी। 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया, ठीक है। ये दोनों मिलके हमारे, ये क्या हो गया हमारा √3 हो जाएगा ये बेसिकली, ठीक है। ये √2 है और ये जो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा वो मेरा क्या आ जाएगा √3। नाउ वी हैव गॉट द मेजरमेंट ऑफ √3, दिस इज √3। सो व्हाट वी विल डू, व्हाट वी कैन डू, ये मेरा मेजरमेंट हो गया √3 का। मैंने क्या किया, पॉइंटर यहाँ पे रखा कंपास का और यहाँ पे पेंसिल, इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है। इसको ऐसे घुमा दिया, ये मेरा जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, √3 आएगा। 4 का रूट तो 2 होता है, तो ऑब्वियसली बात है √3 थोड़ा पीछे ही होगा, है ना। तो वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा √3। सो दिस इज बेसिकली √3, यहाँ से यहाँ तक, 0 से यहाँ तक, तो दिस इज √3। तो दिस इज हाउ वी प्लॉट √3 ऑन अ नंबर लाइन, फाइन। Okay, so now we'll be doing exercise 1.2. So the first question is we have to state whether these statements are true or false. First is every irrational number is a real number. तो real numbers होते ही दो types के हैं, एक rational numbers और एक irrational numbers। तो ऑब्वियसली इरेशनल नंबर सारे जो हैं वो रियल नंबर्स होंगे। मतलब ये कहने का मतलब ये ऐसा हो गया कि बताओ कि जो मैंगो है वो फ्रूट है कि नहीं। सपोज तुम्हारे घर में 2 टाइप्स के फ्रूट्स हैं, मैंगो एंड बनाना, तो इट्स लाइक आस्किंग कि वेदर मैंगो इज अ फ्रूट और नॉट। तो दिस इज क्वेश्चन, क्योंकि रियल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। तो ऑब्वियसली सारे इरेशनल नंबर तो रियल नंबर्स होंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज true, fine. Now the second question is, so the next question is we have to tell that every point on the number line is of the form √m where m is a natural number। मतलब हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन में वो इस फॉर्म का होता है, ऐसा हमें बताना है। तो हमें पता है m जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या हर एक जो नंबर है नंबर लाइन पे होता है, वो ऐसा होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 2/3 ले लूँ m के अंदर, ठीक है, इसको भी दिस इज ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। क्यों, क्योंकि हर एक रियल नंबर को मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकती हूँ, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, राइट। तो ये तो नंबर लाइन पे है, बट क्या ये इस फॉर्म में है रूट के अंदर, दिस इज 2/3 रूट के अंदर। मतलब यहाँ पे m जो है वो क्या है 2/3, बट क्या m नेचुरल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से m नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट m इज नॉट अ नेचुरल नंबर क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। दिस इज अ रैशनल नंबर बट दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, राइट। सो दिस इज नॉट इक्वल टू अ नेचुरल नंबर, बट नंबर लाइन पे तो है। स्टेटमेंट इज फॉल्स, फाइन। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, fine. So then our next question, the third part is every real number is an irrational number। ये तो मतलब ऐसी बात होगी कि तुम्हारे घर में like let me take the same example, तुम्हारे घर में 2 टाइप के फ्रूट्स हैं, सिर्फ 2 टाइप के फ्रूट्स हैं, मैंगो और बनाना। तो इसमें क्या पूछा है, क्या जो हर एक फ्रूट है वो क्या मैंगो होगा। लाइक सपोज मैंगो जो है वो इरेशनल है और जो बनाना है वो रैशनल है। तो हर एक तो नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि वो शायद मतलब लाइक बनाना भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज रियल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, रैशनल एंड इरेशनल, फाइन। तो हर एक जो रियल नंबर है वो इरेशनल होता है, हो सकता है वो रैशनल भी हो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं √2 को ले लूँ, ठीक है, दिस इज अ रियल नंबर एंड दिस इज आल्सो एन इरेशनल नंबर, बट अगर ठीक है ये दिस इज एन इरेशनल नंबर, बट अगर मैं √4 को ले लूँ दैट इज 2,
right? So this is a real number, but this is a rational number. So this statement is false. This statement is false, and you can state this example. Fine. 2 is a real number, but this is a rational number. This is not an irrational number. Fine. This statement is false. Now we'll move further to the next question. The second question is, are the square roots of all positive integers irrational? And if not, give example of square root that is a rational number. मतलब पूछा है कि सारे जो square roots होते हैं, क्या वो जो numbers हैं वो irrational है? अगर नहीं, तो give some examples like to prove your statement. Fine. तो root के अंदर अगर मैं कोई भी number ले लूँ, suppose root के अंदर मैं 2 ले लेती हूँ. This is an irrational number. Fine. ठीक है, this is an irrational number. But अगर suppose मैं root के अंदर 4 ले लूँ, ठीक है, 4 is an integer, तो अगर मैं उसके positive integer है 4, अगर मैं उसका root ले तो वो तो 2 आता है, because 2 का square 4 होता है. Fine, 2 का square 4 होता है. तो this is a rational number, right? So this statement is false. ठीक है, अगर तुम्हें किसी statement को false proof करना है, तो अगर एक भी contradiction मिल गई, तो that is wrong. It's like कि अगर तुमने 100 अच्छाइयाँ कर दी और अगर एक भी बुराई कर दी, तो that is of no value. Like all the good things you did in your past life, कोई नहीं सुनता. So this is what happens over here. Fine. So root 4 जो है, उसका root क्या है 2. So this statement is false, and this is an example. Fine. So the square roots of all positive numbers is not irrational. They can be rational also. Fine. So we are done with this question. So now the third question is, we have to plot root 5 on number line. So वैसे ही पुराना तरीका, मुझे root के अंदर मुझे बेसिकली इनको as a square of 2 numbers दिखाना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं 5 के आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो उससे कम हो या फिर उतने जितना हो. ऑब्वियसली 5 तो किसी का रूट परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो उसके पहले 4 आता है, राइट? तो 4, इसको 4+1 लिख सकती हूँ मैं आराम से. हमें स्क्वायर की तरह लिखना है. अगर नहीं मिलता तो हम फिर ले लेते हैं. तो यहाँ पे तो आराम से मिल रहा है. एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर. तो साफ साफ मिल रहा है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका अगर मैं बेस सपोज 1 ले लूं और परपेंडिकुलर 2 ले लूं, तो इसका हाइपोटेन्यूज आराम से 5 आ जाएगा. तो दिस इज एन इजी नंबर टू प्लॉट. फाइन. तो लाइक रूट 3 ऐसा जनरेटिंग 2 बार. ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है. फाइन. तो मैंने बेस अगर 1 ले लिया, इसको अगर 2 ले लिया, कि 2 कैसे लेंगे? पहले परपेंडिकुलर बनाएंगे, इसके बाद में ये तो 1 यूनिट है. ठीक है, तो 2 यूनिट यहाँ से इतना ले लिया. ठीक है, बस फॉर वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि ये जो है ये यूनिट्स जो है 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, इनका जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए. फाइन. तो दिस यू कैन ड्रॉ इट विद स्केल. सो दिस इज 1, तो हमें 2 लेना है, तो 2 इतना ले लिया और इसको यहाँ पे मार्क कर दिया ऐसे. ठीक है, तो इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया 90 डिग्री को. And this we have got 2. Fine. This is 2. तो हमने इसको join कर लिया. तो basically ये जो चीज मिल गई हमें. Fine. ये जो चीज मिल गई, this is root 5. Now we have to plot it on the number line. हमें पता है कि जो 4 का रूट होता है वो 2 होता है और अगला परफेक्ट स्क्वायर 9 है. 9 का नहीं होता, तो जो रूट 5 है वो इसके बीच में लाई करेगा, राइट? तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा रूट 5, राइट? तो हम जब इसको ऐसे रखे, ऐसे थोड़ा सा when you do it with compass it will be right. So अगर तुम ऐसे करके just ऐसे करोगे, तो this would be somewhat here and this would be हमारा root 5. So this is what root 5. This is how you plot root 5 on a number line. Fine. Now we are done with this exercise. Thank you everyone.